Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. How are you all? Great. All right, I hope you all are good. So, what we were doing on Friday, uh, we were doing DML commands, right? So, let's get started with DML commands. I think the sheet will be visible to you all. You all have this introduction to SQL on your screen, right? Yes, ma'am. So, before starting with your DML command, let's revise first what is DDL. So what all the commands are inside DDL. DDL क्या होता है और कौन कौन सी commands होती है उसके अंदर? Who will tell me? Sanjay Sharma, roll number 135. Sorry, ma'am. What? Sorry. You're coming for the first time in the class? Yes, ma'am. Today was my first lecture. Yes, that's why I picked up. Because I saw your name for the very first time. क्यों? Ma'am, last week, ma'am, I'm out of town. पता आउट ऑफ टाउन हो तो फोन तो तुम्हारे पास है. वेकेशन पे घूमने गया था इसलिए नहीं पिक करता. अच्छा. अब से रेगुलर लूंगा क्लासेस. रेगुलर लीजिए बिकॉज वी आर अप टू द कंप्लीशन ऑफ वन मॉड्यूल. ठीक है. सो जितना निकल चुका है पार्ट, क्लासरूम ज्वाइन करो. यू हैव ऑल द नोट्स. सबने नोट्स देख लिए एंड आई हैव शेयर द मैनुअल ऑल्सो. लैब मैनुअल देखा किसी ने? Yes, ma'am. उसमें यू माइट हैव सीन कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ द चैप्टर्स है और उसकी करस्पॉन्डिंग असाइनमेंट है. So it is around total 6-7 assignments. We will be learning step by step, create statement, all the DDL, DML statements. Then we will be learning how we'll create indexes, views कैसे create करते हैं database में. तो काफी अच्छी lab file prepare होगी if you follow according to the assignments. ठीक है. और ये Ivan Barrows is a book which is specially designed for SQL. तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे इवान बैरोस के बारे में, सो इवान, लेट मी जस्ट राइट हियर, इवान बैरोस, ही इज अ ऑथर एंड ही हैज पब्लिश्ड अ वेरी गुड बुक ऑन एसक्यूएल. तो उसके ही मैंने लैब मैनुअल सर्च किया था एंड उसी की क्वेरीज है. ठीक है. सो यू विल गेट ऑल द क्वेरीज. वो हम स्टेप बाय स्टेप सारी सॉल्व करेंगे. पहले तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ लें कि क्या कमांड होती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है. एंड ये सारी इंट्रोडक्शन हमारी हेल्प करेंगी टू सॉल्व द असाइनमेंट 1. ठीक है. तो आई विल नॉट बी अंडरगोइंग विद चैप्टर 1 बिकॉज चैप्टर 1 हम अभी कर ही रहे हैं. वी आर डूइंग ऑल द DDL एंड DML कमांड्स. ठीक है. सो DDL कमांड्स क्या होती है कृष्णन? व्हाट आर DDL कमांड्स? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट विद द DML इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. हाँ जी कृष्णन. मैम ये हाँ बोलो. यस मैम. बोलो मैम ये लैंग्वेज डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. यस. यस. हाउ? This language is used to basically describe about the structure of the database with the help of various languages, like with the help of various operations like your create, alter, rename, drop, truncate, comment. ठीक है. ये सारी हमने पढ़ी थी. So data definition language, as the name says, it is a language that is one of the part of your SQL commands that is basically used to describe all the structure of the database. ठीक है. So DDL actually consists of SQL commands that can be used to define the database schema. It simply deals with the description of the database schema and is used to create and modify the structure of the data objects, not the content. It is used to modify the structure of the database object, like create. Create command का syntax कौन बताएगा? What is the syntax of create command? We can use create command in two ways. One is create database and one is create table. ठीक है. Create database simply आप लिखोगे, you will write create database followed by the name of the database and you put a semicolon, then you will get the creation of database. And उसके बाद आप लिखोगे create table. तो table जब आप create करते हो तो you will write create table, table name,
then you will write all the columns of the table. ठीक है. Similarly drop है, alter है. अच्छा, drop और truncate में सबको difference clear हो गया है? What is the difference between drop and truncate? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, और what is alter command? विवेक कुमार, alter command कैसे काम करती है? विवेक, रोल नंबर 124. Yes, how does alter command work? Amit Jha, sorry, Hemant Jha. Saksham, roll number 101. Yes, Saksham. You have attended the classes, na? Classes attend की है आपने? So you might be knowing what is alter command. क्या होती है alter command? You're not audible properly. Just reply in the chat. Adding something. बोलो. Just reply in the chat box. Shreya Gupta, क्या होती है alter command? Come on, class. Okay, Rupal, you tell me what is alter command? यस मैम. मैम बेसिकली मैम ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं कि अपनी जो एग्जिस्टिंग टेबल होती है उसमें कुछ भी उसे डिलीट करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए या फिर कुछ ड्रॉप डाउन करने के लिए, मतलब डिलीट ही होता है. So you have to say, like, if you want to modify the structure of the table, okay, then Yes, we ma'am. need to modify the structure of existing table, then you need to use alter command. So alter command has three options. You can add more columns to a table, or you can modify the existing column type. ठीक है, जैसे अगर आप उसको varchar करना है या उसका टाइप आपने नंबर ऑफ बाइट्स इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं. So basically you are dealing with the structure, because all the DDL describes us to deal with the structure of the table, ठीक है, or the database. Then alter का एक और option है drop. With the help of drop you can completely drop the corresponding table along with the structure. ठीक है, तो ये हमने alter पढ़ा था. alter के हमने सारे syntax भी पढ़ा है. Just go through the document, because जब हम execute करेंगे तो आपको help करेगा, because you are knowing about all the commands. ठीक है, so that was alter. We have done all the commands. Now let's start it with DML. Comment भी हमने कर लिया है. Rename भी we have done, how to use rename. So rename also come inside the alter table command. You have to write alter table followed by the name of the table, and then you'll write rename, the name of the column that you want to change. So likewise here it is given. जैसे आपने लिखा, ये देखो हम लोग we will be working on SQL server, ठीक है. So उसमें हम रन करके देख लेंगे कि कौन सा सिंटेक्स फॉलो करता है. तो alter table followed by the name of the table, modify, rename to the name of the table. ठीक है, तो यहाँ पर हमें टेबल नेम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. We will be using a to कीवर्ड. एंड जब हमें कॉलम नेम चेंज करना है तो यहाँ पर विल बी राइटिंग द नेम ऑफ द कॉलम जिसको हमने चेंज करना है. तो कॉलम नेम, पुराना वाला कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम. तो यहाँ पर कॉलम कीवर्ड लिखना जरूरी है, यहाँ पर टेबल कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है. ठीक है, सो ये रीनेम का सिंटेक्स है. देन व्हाट इज अ DML कमांड. So as the name it says, we have to start with DML command now. So data manipulation language. Data manipulation language क्या होती है basically? This is a kind of the language that includes all the SQL commands that basically deals with how do we modify, how do we change the content of a table. ठीक है, so जिससे हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं. How can we change the data? How can we manipulate the data with the help of various SQL commands? Like your insert command, update and delete.
So you must be knowing that कौन सी command कौन सी language में lie करती है. जैसे अगर they may ask you a difference between delete and truncate. So where does a truncate command lie? Truncate command कौन से group में lie करती है? DDL में. और delete कहाँ lie करती है? DML में. ठीक है. तो दोनों का सबसे मेजर कैटेगरी क्या है? अभी जब हम डिलीट के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू गिव मोर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट. अभी हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. बट ड्रॉप और ट्रंकेट में तो दोनों ही आर द पार्ट ऑफ डीडीएल लैंग्वेज. बोथ आर द पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. बट विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप you are dropping the whole database along with the structure. You cannot reallocate the table to some other data. But in truncate, you are temporarily deleting the data, and you can do the structure is still there. You can reallocate the structure to some other data. Okay, so that is a basic difference between drop and truncate. Now let's see what we have seen the insert table. Insert into command देख लिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या what there are two methods of using the insert command. How can we use it? Insert के दो ऑप्शन हमने पढ़े थे. क्या क्या ऑप्शन थे? एक तो या तो मैम, हाँ बोलो. मैम या तो हम सिर्फ वैल्यूज दे सकते हैं और सेकंड टाइप में कॉलम नेम्स के साथ हम वैल्यूज देते हैं. Yes, yes. So I hope you all are making some kind of notes. कौन कौन नोट्स बना रहा है और कौन कौन सिर्फ बैठ के कथा की तरह सुन रहा है? Just raise your hands. I got only one hand raised. अच्छा. रूपल, कृष्णन और ये कौन है? मेहुल और अंकुर, अलीशा, आयुष, आर्यन, and what about others? Okay, so there are 10 students, 11. सोच के क्यों हाथ रेस कर रहे हो? So I want you all to make some kind of notes. ठीक है, मतलब कि पूरा डिटेल में लिखने की बजाय you can just write in the form of bullets कि क्या क्या आज क्लास में हुआ है. You can write a small line, one line definition of everything. जो जो आपके दिमाग में जा रही है चीजें, you can just note it down. उससे क्या होता है? There are many advantages of this. First, you just get a kind of satisfaction at the end of lecture कि आपने कुछ किया. There is some productiveness. ठीक है. Secondly, it will stay longer in your mind कि आपने क्या किया है, उसका क्या syntax है. तो please, जो लोग नहीं नोट कर रहे हैं, please try to make notes. ठीक है. तो DML में हमने पहली कमांड देखी थी insert. Insert into is the right syntax of this command. You will write insert into. ठीक है. Then you will write the name of the table कि आपको किसमें insert करना है, table name, and then values is a keyword. And in the round parentheses you will specify all the values. मैंने आपको बताया था कि आपने जिस भी ऑर्डर में स्ट्रक्चर में कॉलम के नेम को दिया होगा उसी ऑर्डर में वैल्यूज देनी है आपने. ये मैंने बताया था आपको. ठीक है. अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर दोगे बट जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे द वैल्यूज विल गेट इन द सेम ऑर्डर. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल इन द लास्ट क्लास कि जैसे अगर मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है और जो मेरा स्टूडेंट का स्कीमा है इट लुक्स लाइक दिस. आई हैव स्टूडेंट नेम, देन आई हैव द रोल नंबर, then it's course, and then semester. This is my database schema of the table student. अभी जब आप relational database के बारे में पढ़ोगे ना then you'll be learning कि हम कैसे define करते हैं. मैंने name of the table लिखा, उसको parenthesize किया. I'll just write all the attributes. These are the name, roll number, course and semester. इस तरीके से मैं एक डेटाबेस स्कीमा को लिखती हूँ. दिस इज माय डेटाबेस स्कीमा ऑफ स्टूडेंट टेबल. अब यहाँ पर जब मैं इंसर्ट कमांड यूज करूंगी तो आई विल सिंपली बी यूजिंग दैट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड देन अगर लेट्स सपोज मेरा जो नेम है, कोर्स है, सेमेस्टर, ऑल द थ्री एट्रीब्यूट्स हैव varchar डेटा टाइप. तो नेम को मैंने डाला हर्ष. ठीक है. Then उसका roll number is 56, let's suppose.
उसका कोर्स है बीटेक, सॉरी उसका कोर्स है सीएससी, ठीक है। मैम इसमें वैल्यू कीवर्ड नहीं यूज होगा? वैल्यू कीवर्ड, वैल्यू कीवर्ड किस लिए? अच्छा यहाँ पे, हाँ हाँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, यहाँ पे इंसर्ट में होगा, हाँ वैल्यूज, देन सेमेस्टर है उसका 5th सेमेस्टर, ठीक है। अब तो यहाँ पर मैंने जो ऑर्डर दिया वैल्यूज का, जैसे हर्ष नेम में गया, 56 रोल नंबर में गया, सीएससी कोर्स में गया, और 5th सेमेस्टर में गया। सो if I execute the statement like in this way तो properly execute हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर मैं इनको इंटरचेंज करूंगी तो जिस ऑर्डर में मैं दे रही हूँ और जिस ऑर्डर में मैंने अपने स्कीमा डिफाइन किया है, यहाँ पर अगर मैं 5th लिख दूंगी तो कोर्स के अंदर 5th चला जाएगा, और सेमेस्टर के अंदर आपका अगर मैं लिखती हूँ सीएससी तो सीएससी चला जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अभी तो देयर आर ओनली 4 एट्रीब्यूट, बट जब आपकी बड़ी बड़ी टेबल्स बनेंगी ना, जब हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें काफी सारे कॉलम्स होंगे और काफी सारी डेटा आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो और एक और तरीका भी है कि अच्छा, अभी इंसर्ट के भी काफी सारे ना वर्जन्स हैं कि आप कैसे एक इंसर्ट कमांड से यू कैन इंसर्ट नंबर ऑफ रोज एट अ सेम टाइम। तो वो सारे वर्जन जब हम प्रैक्टिकली रन करेंगे देन वी विल बी लर्निंग। और एक और वर्जन है कि कैसे हम किसी टेबल से उसकी रोज को दूसरी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी विल बी लर्निंग ऑल दीज वर्जन्स व्हेन वी डूइंग एग्जैक्टली इन द लैब, कि हमारे पास कोई और एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल नाम की, उससे हमें कुछ रोज के कंटेंट को उठा के स्टूडेंट में डालना है। तो वी कैन डू दैट बाय यूजिंग द इंसर्ट कमांड इटसेल्फ। So abhi, for the time being, you just learned these two syntaxes. One is by using the value keyword, and one is by specifying the name of the columns, and then we'll be using the value keyword in order to put the values. ठीक है, तो ये दो syntax आपको clear है insert command के? Shall we proceed ahead? Yes, ma'am. Okay. So the next is update command. Okay. Now, what is the difference between alter and update? हाँ, अपडेट कमांड कब यूज करते हैं हम? When do we use this update command? मैम जब पहले से डाटा मौजूद हो, उसमें कुछ चेंज करना हो। हाँ, so basically update command works with the original data into the table and we want to change, we want to manipulate the data into the table. Let's suppose मुझे किसी जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 15 है, उसका जो नाम है उसका सरनेम चेंज करना है, या उसका रोल नंबर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे चेंज करना है। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्वेश्चन, मेरी क्वेरी क्या है, just change the name of the student contact, just change the contact number of the student where the roll number is 56. Have you got it? कि मैंने आपको वो रो बताई जिस रो का रोल नंबर 56 है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना। So when we are working with update statement, just listen to my words very carefully. When we are working with update statement, we will be using a where condition. Where condition, just see here, कि आप बताओगे तो सही ना कि आपको कहाँ पे चेंज करना है ना। अभी तक हमने where कीवर्ड के बारे में पहले तो सुना नहीं, but now when you are working with update statement, you are using the where condition कि you are specifying कि कहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। तो उसका सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अपडेट स्टेटमेंट? विल राइट अपडेट टेबल नेम, ठीक है, देन सेट, SET, सेट इज अ कीवर्ड, नेम ऑफ द कॉलम एंड उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यू कैन अपडेट मल्टीपल कॉलम्स टुगेदर, सो यू कैन राइट कॉलम जो भी एज है, उसकी एज आपने गलत लिख दी थी तो एज सही करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर सही करना है, या उसके सरनेम चेंज करना है, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे रोल नंबर क्या है 56, जहाँ पर उसका। और एक और चीज का ध्यान रखो, अभी आप पढ़ोगे, यू विल लर्न अबाउट प्राइमरी कीज, यू विल लर्न अबाउट, अभी मैं आपको ऐसी लेमैन टर्म्स में बता देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की। हर एक टेबल में, हर एक रो में, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो। एक टेबल के अंदर अगर 10 रो है और स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, तो मैंने आपको अभी एक स्टूडेंट नाम का स्कीमा का
एग्जाम्पल दिया था कि अगर उसमें एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है रोल नंबर, एक कॉलम है उसका कोर्स, वन इज योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक स्टूडेंट डिटेल टेबल। Okay, now if I have 10 student details, which is the one value which is unique in every row? Just tell me. Which will be the one value that will always remain unique? Contact number. Yeah, good. Or रोल नंबर। roll number. अब मैं एक और चीज आपसे पूछती हूँ। If you will be the DBA, ठीक है, अगर आपको एक रोल असाइन किया जाता है, तो जब भी जब भी हम कोई डेटाबेस डिजाइन करते हैं ना, तो हमें एक ऐसी एट्रीब्यूट, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट, राइट? एक ऐसा एट्रीब्यूट फिक्स रखना होता है that will remain unique, that will not duplicate, that value cannot be null in every row. With the help of that particular value, we can identify every tuple. We will use a word tuple instead of rows. Every tuple from the remaining tuples of a table. You get me? What I'm saying is, in every row there is one value which will kept as unique value, which will be calling as a primary key. उसको हम एक primary key word बोलते हैं. We'll be studying in detail, no problem. अभी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे about all the keys of the table. But अभी मैं आपको बताती हूँ कि देखो, आपने बोला कॉन्टैक्ट नंबर, yes, good. But अगर आप एक डेटाबेस डिजाइनर हो, आप एक डेटाबेस को डिजाइन कर रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर एक ऐसा वैल्यू है दैट इज अंडर द हैंड ऑफ द स्टूडेंट। मतलब कि अगर किसी बच्चे का ये जो वैल्यू है, ये कॉलेज के हाथ में तो नहीं है ना इसकी पावर। मतलब कि कॉन्टैक्ट नंबर किसी बच्चे का हो भी सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है, किसी बच्चे ने नहीं दिया या किसी बच्चे ने गलत कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। बट जो रोल नंबर है, रोल नंबर एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक स्टूडेंट का होता है रोल नंबर। और रोल नंबर जो असाइन करता है वो कॉलेज असाइन करता है। तो कॉलेज अगर अपना डेटाबेस बना रहा है, स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहा है, तो उसमें रोल नंबर की जो असाइनिंग पावर है वो उस कॉलेज के हाथ में। तो वो किसको प्राइमरी की असाइन करेगा? रोल नंबर को प्राइमरी की असाइन करेगा। और रोल नंबर की हेल्प से हर एक इंडिविजुअल रो को आइडेंटिफाई कर सकता है। मतलब कि जिसका रोल नंबर 5 है उसकी रो अलग होगी, क्योंकि किसी का नेम रवि, रोल नंबर 5, तो एक ही बच्चे का होगा, बट रवि नाम का 2-3 बच्चे हो सकते हैं। कोर्स सबका बीटेक या सबका कंप्यूटर साइंस कोर्स हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर, yes, I agree with you, contact number must be different, but it can be null also. But here the roll number cannot be null. So whenever we are using the where condition, we will be using the primary key in order to identify each individual row with the different rows. You got it? What is why I'm explaining about this? I'm explaining all this concept in order to यूज। यहाँ पर जब कंडीशन में जब आप जो भी एट्रीब्यूट यूज करोगे ना, वो एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब वो एट्रीब्यूट यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई वन रो फ्रॉम द रिमेनिंग रोज। यू गॉट इट? Yes, ma'am. So here if I give you an example, let me give you a query। कि मेरी क्वेरी है कि मेरे पास ये टेबल है, ऊपर वाली ये वाली टेबल देखो, ये जो ऊपर टेबल बनी हुई है ना, लेट मी स्क्रॉल यू अप। ये टेबल है जिसमें मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन है और एज है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अपडेट करना है लोकेशन, एड्रेस किसका? जिसका रोल नंबर 2 है। तो हाउ विल आई राइट दिस क्वेरी? You got the query? Update the address of roll number 2 from Gurgaon to Delhi. So how will you write this query? You will write update student, अगर इस टेबल का नाम स्टूडेंट है तो set address। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखोगे कि वैसे तो इट इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। एड्रेस इज इक्वल्स टू गुड़गांव से, अच्छा यहाँ पे विल बी राइटिंग दिल्ली,
set address equals to Delhi where roll number is equals to 2, ठीक है, equals to। अब यहाँ पर अभी we will be studying about the various operators also। आपने पढ़े भी होंगे कि जो सिंगल इक्वल्स टू होता है that is your assignment operator, और डबल इक्वल्स टू जो होता है that is your equivalent operator। you know about this? पता है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो सिंगल ऑपरेटर नहीं लगाना है यहाँ पे। दिस इज इक्वल, दिस इज मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि आप 2 को असाइन कर रहे हो रोल नंबर में। यू आर नॉट यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, वी हैव टू यूज द इक्विवेलेंट ऑपरेटर विच इज डबल इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, अपडेट स्टूडेंट, दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, सेट एड्रेस, दिस इज अ कॉलम नेम, 2 मतलब कि एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज द रिजल्ट आंसर ऑफ द क्वेरी जो मैंने अभी ऐसे एग्जाम्पल के लिए पुट किया। तो आपने यहाँ पर क्या यूज किया, आपने सिंपल लिखा अपडेट, टेबल नाम का कीवर्ड नहीं लिखना है, सिंपल नेम ऑफ द टेबल, सेट कॉलम का नाम और उसकी न्यू वैल्यू। अगर आपको 2 कॉलम चेंज करने तो कॉमा लगा के दूसरे कॉलम की भी आप वैल्यू ले सकते हो, 3 करने तो कॉमा से आप सेपरेट करके लिख सकते हो। लास्ट में आपने कंडीशन लिखी और यहाँ पे सेमीकोलन पुट करना है, व्हिच आई फॉरगॉट टू पुट, ठीक है। So this is the way how you will using the update command। and update command जो होती है आपको पता है data manipulation language के अंदर lie करती है, which is used to update the content, update the data of the table, ठीक है। Now by using the update command, again I'm saying you have to use a where clause। where clause क्या करता है, it helps us to select the row where you want to update the content, where you want to do the actual updation। तो where clause is helps you to basically सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर रो कि किसके साथ आपको काम करना है, ठीक है। अगर आप वेयर क्लॉज स्पेसिफाई नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट कि आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो वो सारे ऑल द रोज विल गेट अपडेटेड। इफ वी आर नॉट यूजिंग द वेयर क्लॉज तो क्या होगा, ऑल द रोज विल गेट अपडेटेड, ठीक है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर में, यस आयुष यू वांट टू से समथिंग? मैम अगर मल्टीपल रोज में चेंजेस करने हो तो? हाँ, तो जैसे मल्टीपल रोज में चेंजेस करने तब आप प्राइमरी की यूज नहीं करोगे, ऑफ कोर्स, है ना। लेट्स सपोज, गुड क्वेश्चन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे ये वाली टेबल है, ठीक है। अब जहां पे आपको लेट्स सपोज मेरे पास ना ये कोई है, एक और कॉलम है लेट्स सपोज इसके अंदर जिसमें है वोट यस और नो, ठीक है। यू गॉट इट। जैसे मैं यहाँ पर ना एक और कॉलम बना देती हूँ वोट नाम का, ठीक है। अब अभी तो यहाँ पे ये जो इसके अंदर वैल्यू है ना, अभी इसके अंदर वैल्यू सब में नो है, ठीक है। ओके, सो आई वाज जस्ट शेयरिंग कि अभी जो वोट वाला कॉलम है इसमें सब में क्या वैल्यू लिखी हुई है, नो, ठीक है। नाउ आपको इस वैल्यू को अपडेट करना है जिनका एज इज 18 या ग्रेटर देन 18, नॉट इक्वल्स टू 18, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज सारी 18 ही है ना। तो अगर जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो यहाँ पर 20 और 19 मतलब मल्टीपल रोज के साथ काम करना है। तो यहाँ पर आप कौन सा कॉलम यूज करोगे वेयर कंडीशन में? You will actually use the age column। अब आप इसमें क्वेरी क्या लिखोगे? यस आयुष, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है? यस मैम। आपने क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू वांट टू चेंज मल्टीपल रोज टुगेदर, तो अगर आपको मल्टीपल रोज के साथ काम करना है, लेट मी, जैसे मैंने एक
सिनेरियो पुट किया कि हमारे पास एक वोट नाम का कॉलम है जिसमें अभी सब जगह नो है, यू वांट टू अपडेट जिसमें जिनकी एज ग्रेटर देन 18 है उनकी जगह यस आ जाए, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, अपडेट स्टूडेंट सेट वोट इक्वल्स टू यस वेयर एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो यू कैन यूज ऑल द ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, वो सब आपकी कंडीशन के ऊपर है। ठीक है, कि आपको क्या कंडीशन पुट करनी है। ये क्वेरी क्लियर हुई ये वाली? तो आप यस बेसिकली मैम। एज की जगह पे क्या लिख दो, यहाँ पे रोल नंबर की जगह लिख दोगे रोल नंबर एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो वहां पर मैम सारी 20, हाँ बोलो। मैम अगर हमारे को एड्रेस ही 2 जनों के चेंज करने हो, जैसे जैसे मेरे को 5 है, प्रतीक उस पर नल है, अगर मेरे को उसमें गुड़गांव लिखना है तो मैं हाँ कॉमा लगा के कर सकते हैं क्या अपडेट स्टेटमेंट को? एक सीक्वेंस की तरह यूज कर सकते हैं हम एड्रेस स्टेटमेंट आप एक सीक्वेंस की अपडेट तरह को? इसी वोट वाली क्वेरी के अंदर ही नो मैम, एड्रेस वाली में इसमें मैं आप दिल्ली के आगे यहाँ पर, कॉमा लगा के। बट हाँ देखो आप कॉमा लगा के कर सकते हो, बट वो होगा किस रो के साथ, जिस रो का रोल नंबर 2 है। गॉट इट? बट आपको तो किसका करना है, जिसका रोल नंबर 5 है। तो मैम एक बार में फिर तो अगर यहाँ मल्टी। और लगा दें यहाँ पर अगर आप रोल और नंबर ऑपरेटर, इक्वल्स टू 2। यहाँ पर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 2 और रोल नंबर इक्वल्स टू 5। ठीक है, बट उसमें आपका एड्रेस जो है ना उसका सेट वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आप दिल्ली करना चाहते हो रोल नंबर 2 को, और 5 के एड्रेस को भी दिल्ली करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर सकते हो, और यू कैन राइट और ओके मैम। लॉजिकल ऑपरेटर से। ठीक है, और एंड तब यूज करोगे जब आप दोनों, मतलब कि जहां पर जैसे एज अगर आपने लिखा वेयर एज इज इक्वल्स टू 18 या नहीं, यहाँ पे एंड की कंडीशन अलग होगी कि जहां पर कंडीशन शुड बी ट्रू फॉर बोथ द रूल्स, तब आप एंड यूज करोगे। तो डोंट वरी, विल बी डूइंग ऑल द क्वेरीज। बहुत सारी क्वेरीज हम हमारी लैब मैनुअल में है, जब करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप अपडेट स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू ऑल। यस मैम। चलो अब ये देखते हैं लास्ट। मेहुल अटेंडेंस भेज देना बेटा। लास्ट है हमारी कौन सी, डिलीट। तो डिलीट इज अनदर कमांड विच इज अ डीएमएल कमांड। क्या कर रही हो? तो डिलीट कमांड देख लेते हैं फटाफट। So as the name says, delete command क्योंकि lie करती है inside the DML, and if you want to now just see here, डिलीट कमांड के साथ भी वेयर क्लॉज काम करता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे अपडेट के अंदर आप बता रहे थे कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को या किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आपने चेंज करना है जहां पे ये कंडीशन है। सिमिलरली अपडेट में ये था, डिलीट में क्या है कि यू वांट टू चेंज यू वांट टू डिलीट अ पर्टिकुलर डेटा जिसकी वेयर कंडीशन में वैल्यू ये है। यू गॉट इट? तो आपका इसका सिंटेक्स क्या लिख रहे हो, यू आर राइटिंग डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर रो इज इक्वल्स टू वेयर कॉलम रोल नंबर इक्वल्स टू 2। अब इसमें क्या होगा, एंटायर रो पूरी डिलीट हो जाएगी जिसका रोल नंबर 2 है। ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। जी मैम। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट ना शेयर किया हुआ है उस पे क्लासरूम पे, बट इट इज नॉट अपडेटेड। तो दिस इज द अपडेटेड वर्जन जिसमें आई हैव एक्सप्लेन अबाउट ऑल द मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। डिलीट में आप क्या करते हो, यू विल डिलीट अ करस्पॉन्डिंग रो फ्रॉम अ टेबल। अब आपको डिलीट करना है, ठीक है, डिलीट करने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई कि आपको कौन सी रो डिलीट करनी है, तो वो आप स्पेसिफाई करोगे वेयर कंडीशन पे। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये टेबल है
हमारे पास ये टेबल थी, ठीक है। नाउ यू वांट टू डिलीट द डेटा ऑफ रोल नंबर 4, ठीक है, उसका रोल नंबर 4 छोड़ के गया, चला गया, तो उसके डेटा को आपने डिलीट करना है, तो यू विल सिंपली राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा डिलीट। मैम पूरा रो ही रिमूव हो जाएगा क्या? हाँ, पूरा रो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट करना है ना, तो कॉलम की वैल्यू डिलीट नहीं होती है। Delete option basically works with deleting a corresponding tuple or the row. I think my son is crying a lot. क्या हो गया? चलो यहाँ पे देख लो, ये टाइम ओवर होने वाला है, ये देख ले, डिलीट क्लियर हो गया है। यस मैम। अच्छा, डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है बताओ? डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है? मैम डिलीट से एक स्पेसिफिक रो को हटा सकते हैं, रो के डाटा को, हाँ लेकिन ट्रंकेट में पूरा डेटाबेस या पूरा टेबल का ही डाटा चला जाएगा। हाँ, और ट्रंकेट जो है उसमें वेयर क्लॉज की जरूरत नहीं है ना, और क्योंकि आप पूरे टेबल को इकट्ठे डिलीट करो, यू आर सिंपली राइटिंग ट्रंकेट टेबल फॉलोड बाय द नेम ऑफ द टेबल में, ठीक है। और डिलीट का सिंटैक्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि डिलीट में आप एक रो को डिलीट कर रहे हो, वेयर यू आर स्पेसिफाइंग कि कौन सी रो को डिलीट करना है फ्रॉम द वेयर क्लॉज, ठीक है। ये मैंने डिफरेंस दिया हुआ है, दिस इज अ टैबुलर डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द स्पेसिफाइड रोज and the truncate command is used to delete all the rows from a table, ठीक है। It is data manipulation command and it is a data definition command. इसके अंदर you need to use a where clause and there is no need of using the where clause, ठीक है। delete command क्या करती है, जैसे रो हो गया, in delete command a tuple is locked before removing it, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है इसका, कि अभी जब आप हर एक टपल लॉक होता है, वी हैव नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लॉकिंग, जब पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हम जब भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, तो हर एक डेटा आइटम इज लॉक्ड, उसको हम अगर डिलीट कर देते हैं तो उसके लॉक को हटाना पड़ता है, तभी हम उसको रिमूव कर सकते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू अनलॉक इट। तो व्हाट इज लॉकिंग, व्हाट इज अनलॉकिंग, वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल। और डिलीट स्टेटमेंट रिमूव्स वन रो एट अ टाइम, एंड यहाँ पर ट्रंकेट में सारी रोज डीलोकेट, सारा मतलब डेटा एक ही बारी में डिलीट हो सकता है, वी कैन रीअलोकेट इट टू सम अदर डेटा, टू सम अदर टेबल, ठीक है। अब डिलीट कमांड इज स्लोअर एंड ट्रंकेट कमांड इज फास्टर। क्यों स्लोअर है? बिकॉज यहाँ पे हम रो बाय रो डिलीट कर रहे हैं, एंड ट्रंकेट में वी आर ट्रंकेटिंग, वी आर डिलीटिंग द एंटायर रोज इन वन गो, ठीक है। So you must be knowing the difference in delete and truncate. Moreover, you must be knowing the difference between DDL and DML. ठीक है, DDL हमने पढ़ लिया है, DML हमने पढ़ लिया है. It has been asked number of times in exam. What is the difference between DDL and DML? They may ask you what are DDL and DML commands. ठीक है, anyway they can ask the question. So you have to prepare this question. The difference between DDL and DML. ठीक है, is it clear to you all? एक बार इसको read कर लो कि DDL is data definition language, DML is data manipulation language. DDL के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है वो आप बताओगे, DML के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है. और DDL describes you about the structure of the database, whereas DML tells you about how you manipulate the data of the table, the data of the database. ठीक है, और इसकी you cannot further classify the DDL, इसकी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट DML को आप क्लासिफाई कर सकते हो प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल DML लैंग्वेजेस. ठीक है, ये क्या होती है, दैट आई विल बी टेलिंग यू. उसके बाद यहाँ पे कोई वेयर क्लॉज यूज नहीं होता. हियर वी नीड टू यूज अ वेयर क्लॉज इन अपडेट एंड इन डिलीट. ठीक है, सारी कमांड्स आप बता दोगे कौन कौन सी कमांड्स है DDL के अंदर, कौन कौन सी कमांड्स है DML के अंदर. ठीक है, is it clear? With this we have done the unit, the first part of module. From tomorrow we'll be starting data modules. ठीक है, that is the second part of module 1. सारे data modules हम cover करेंगे. I will be starting this topic from